Rod. Calculate Rod's after-tax proceeds from the sale of his shares in Lumba PLC and explain your calculations of the base cost of shares. Calculate, चलो एक let's go one by one. ठीक है. Rod's after-tax proceeds from the sale of his shares in Lumba PLC. You should assume today's date is 1st of June. एक बात ऑब्जर्व करना, इन द फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ ना बहुत बार देयर इज सम क्रूशियल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, एज इन विच टैक्स बैंड डज ही फॉल इन, और his domicile and residential status, which later on helps you in answering the question. So make sure that you have underlined that. Capital gains tax implication of selling shares he obtained through his employer's EMI scheme. चलो EMI scheme है. Potential income tax relief available in respect of his share of a trading loss of a partnership which he has recently joined. Rod is resident and domiciled in UK, was employed for many years by Lumba PLC before taking early retirement on 30th June 2024, joined the Thora partnership on 1st of December 2024, made no disposals for capital gains tax in the year 24-25 other than sale of his shares in Lumba PLC. ठीक है. In May 2020, Lumba PLC granted Rod options to purchase 20,000 shares under its EMI scheme. The market value of a share at the date of grant was 2.6 and the option price was 2.3. Rod exercised all of the options on 1st of June 2024 when the market value was 3.9. Rod sold the shares when the market value was 4 per share. The gain is eligible for BADR. वो तो चलो हमने पिछले क्वेश्चन में very nicely we have established this fact. अब ये रॉड वाले सिचुएशन में let's understand कि what are the implications and how exactly are we supposed to proceed with this question. ठीक है. अब in this case सबसे पहले there are multiple events जिसके लिए अपने को टैक्सेबिलिटी का एक बार इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, राइट. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? एक तो है आपका ग्रांट, देन है आपका एक्सरसाइज, देन है आपका डिस्पोजल, है ना. तो लेट्स गो वन बाय वन कि आफ्टर टैक्स प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स इन लुम्बा पीएलसी. First of all, when he purchased, so what was the situation? The situation was कि this is an EMI scheme. ठीक है. So at the time of grant, market value was 2.6, option price was 2.3. Will there be any income tax implications for this? Income tax will 2.3 arise, है ना. So let's event one अगर मैं बोलूं, event one is एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शंस. अच्छा, ग्रांट ऑफ ऑप्शंस पहला इवेंट है ना. नॉट एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शंस, ग्रांट ऑफ ऑप्शंस इवेंट वन, नो टैक्स. इवेंट टू क्या है? exercise of option. एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शंस. ये कब हो रहा है? 1st of June 2024 को हो रहा है. द मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर एट द डेट ऑफ ग्रांट वॉज 2.6 एंड ऑप्शन प्राइस वॉज 2.3. ही एक्सरसाइज द ऑप्शंस ऑन 1st of June 2024. ठीक है. कितना आएगा ऑन दिस पर्टिकुलर डेट? व्हाट विल बी द टैक्स इम्प्लीकेशन ऑन एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शंस? कितने ऑप्शंस थे इसके पास? 20,000 ऑप्शंस, राइट. इनटू व्हाट माइनस व्हाट? Option price 2.6, market value at the date of grant, sorry, option price 2.3, market value 2.6. कितना आएगा? 0.3 into 20,000. 6,000. 2.60 minus 2.30, ये हो जाएगा 0.3 इंटू 20,000, दैट इज 6,000. ठीक है. 6,000 हो जाएगा. ये 6,000 पे आगे क्या होगा? देयर विल बी इनकम टैक्स इम्प्लीकेशंस, राइट. Yes, sir. सो इनकम टैक्स एप्लीकेबल. ठीक है. ऑप्शंस उसने एक्सरसाइज कर दिए. उसके बाद आएगा आपका इवेंट थ्री. व्हाट इज इवेंट थ्री? डिस्पोजल ऑफ शेयर्स, है ना. Yes, sir. कैसे करेंगे इसको? Sale proceeds into 4. 20,000 into 4 minus cost. सेल प्रोसीड्स विच इज 20,000 इंटू
4, है ना? कितना हो जाएगा? एटी एट्टी थाउजेंड थाउजेंड लेस कॉस्ट कितना हो जाएगा? 20,000 इंटू 2.3 2.3। ठीक है, 23 टू सा और अगेन मार्केट 46। वैल्यू आएगा 2.6। मार्केट वैल्यू आएगा, या फिर सो देयर आर टू वेज ऑफ शोइंग दिस। ठीक है, वन वे इज subtract cost and subtract the amount of tax paid. Why? Because this would be the change in base cost. या फिर आप इसमें से subtract करो 20,000 माइनस 2.6 विच इज 52,000। सो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, 80,000 minus 46,000 minus 6,000 which is the value of taxable benefit that he has gotten। तो ऐसे करके आप 52 माइनस कर सकते हो, या यू कैन सब्ट्रैक्ट 52 इन वन गो। बोथ वेज इट्स द सेम। ठीक है, आपका रिवाइज बेस कॉस्ट जो है वो 52,000 हो जाएगा। इसमें से ये 52 माइनस किया, यू गेट 28,000। ए माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 25,000 इंटू 10%। 25,000। यहाँ पे दिस गेन इज स्पेसिफिकली एलिजिबल फॉर बिजनेस असेट डिस्पोजल रिलीफ। तो इंटू 10% करो, बीएडीआर हो जाएगा, राइट? यस सर। ओके, इज दिस ऑल दे हैड आस्क्ड? कैलकुलेट रॉड्स आफ्टर टैक्स प्रोसीड्स एंड एक्सप्लेन योर कैलकुलेशन ऑफ द बेस कॉस्ट ऑफ शेयर्स। तो बेस कॉस्ट का जो आपका वर्किंग है वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि it will become 2.3 is the cost, but then uska market value on the date of exercise was 2.6, so that should be considered as the base cost। ठीक है, सो एक्सप्लेनिंग दैट ऑल्सो कैरीज मार्क्स। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन करना इज नॉट इनफ, एक्सप्लेनिंग दैट कैलकुलेशन ऑल्सो कैरीज सर्टन मार्क्स। टोटल कितने मार्क्स थे ये क्वेश्चन में? 6 मार्क्स थे। ठीक है, सो इफ यू लुक एट द स्प्लिट ऑफ मार्क्स, कैलकुलेशन वुड बी फॉर 4, but explanation will carry 2 marks। And when you explain ना, think about it as if you are telling me or telling a friend कि यार ये कैलकुलेशन में 52,000 कैसे आया। So just explaining that is enough। As long as the language is professional enough, you will get your score। ठीक है, जो भाई ने ओके B1। सर। बताया कि एग्जैक्ट प्रोफेशनल मतलब वो प्रोविजंस का जो लैंग्वेज है वो एग्जैक्ट लिखना है बिल्कुल फॉर नहीं, मतलब ये मार्क्स के लिए स्किल मार्क्स के लिए। बिल्कुल नहीं नहीं ना। लिखना है वो, नहीं नहीं नहीं। एक तो क्या ओके। है ना, जो आपने एटीएक्स सिलेबस में वर्ड्स यूज किए हैं, दोज आर ऑल्सो नॉट एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ लॉ। ठीक है, वो भी ओके। उन्होंने अपने हिसाब से बना के वर्ड्स यूज किए, सो शुडंट बी मतलब दैट एक्सपेक्टेशन इज नॉट देयर। ठीक है, यस। B1, calculate Rod's share of tax adjusted trading loss in Thora partnership for the year 24-25 and 25-26। Your answer to B1 should clearly show the relevant basis periods. State how Rod is able to relieve the trading losses in B1 above as early as possible, and explain with supporting calculations the total amount of income tax saved if Rod follows this strategy। इसका क्या सीन है? He has Thora partnership has been carried on for many years by two partners, Abe and Bob. Prepares accounts to 30th November annually. Admitted Rod into partnership on 1st of December 2024. Is expected to make the following trading losses. The accounting period ended 30th November 2025. Year ended 30th November 2026। Thora partnership, before admitting Rod as a partner, Abe and Rob split the profit equally. The partnership's profit and loss sharing agreements from 1st of December 2024, that is, from the date of admission of this person, is 1 is to 1 is to 1। सैलरी दिया है एब का 20, बॉब का 20, रॉड का 0। रॉड्स इनकम in the tax years 21 22 to 24 25 is given to you। एम्प्लॉयमेंट इनकम कितना, डिविडेंड इनकम कितना। आपको क्या पूछा है? रॉड शेयर ऑफ टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग लॉस इन थोरा पार्टनरशिप। ठीक है, कैसे करेंगे? हिज शेयर ऑफ लॉस। So in year 24-25, loss is 47,000, and हम्म, then add salary of both 40,000. It will be 87,000. 87,000 divided by 3.
वन बाय, आराम से आराम से। अच्छा, टैक्स ईयर इज 24-25. When was Rod admitted into partnership? December 24. फर्स्ट 1st December दिसंबर 24. 1st December 24. So from a tax year perspective, he was a partner only for 4 months, right? यस सर He was a partner only for 4 months. Now, before admitting Rod as a partner, they were sharing profits equally. And ये जो आपने अभी the number that you said, it is expected to make tax adjusted trading losses of 47,000 for the year ended 30th November 2025. इन दोनों का सैलरी दे दिया है ना, इन Yes, sir. दोनों का सैलरी दे दिया, तो लॉस फॉर टैक्स ईयर 24-25 कितना होगा? 47,000 plus 20,000 plus 20,000. 87,000. प्लस 20,000 प्लस 20,000, दैट इज 87,000। ठीक है, 87,000 इज द टोटल अमाउंट ऑफ लॉस। इस लॉस को किस रेशो में एडजस्ट करना है? Equal. So divide by इक्वल 3. रेशो। सो शेयर ऑफ रॉड्स लॉस कितना होगा? 87,000 अपॉन 3। 29,000. अब फॉर टैक्स ईयर 24-25 कितना होगा? 29,000 25, होगा। 26, sir. नहीं, पहले तो 24-25 करना पड़, अच्छा, हाँ. है ना? कितना होगा 24-25 का? 1st December 24 to 5th of April 25 इंटू 4/12 करेंगे, राइट? सर बट यहाँ पे अकाउंटिंग पीरियड भी तो 30 नवंबर 2025 को ही हो रहा है. अकाउंटिंग पीरियड भले ही हो रहा होगा, बट आपका टैक्स ईयर तो थर्टी ओ फर्स्ट हाँ. ऑफ हाँ हाँ, मतलब ठीक है सर. उन्होंने सवाल जो पूछा है वो टैक्स ईयर रिलेटेड पूछा है, राइट? ओके, अब लेट्स टॉक अबाउट 25-26 टैक्स ईयर 25-26. If you observe, 8 months from accounting period ended 30th November 25 fall within a tax year 2025-26. 8 months from accounting period ended 30th November 25 fall within tax year 25-26. So 29,000 into 8 by 12 will be considered as 19. loss, Yes, है sir. ना? 19,333. 19,333. अब 4 months from accounting period ended 30th November 26 fall within tax year 25-26। ठीक है, कितना हो जाएगा? 50 plus 20 50,000। plus 20 यहाँ पे अगेन 50,000, लेट्स पुट इट इन अ ब्रैकेट। 50,000 प्लस plus 40,000. प्लस 20 प्लस 20 इनका सैलरी, लॉस इंक्रीज हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4/12, करेक्ट? Yes, sir. कितना आएगा बताइए? 10,000. 10,000। 90,000 divided by 3 into 4/12, 10,000, correct? अब सी, दिस इज मोर ऑफ अ मैथ्स क्वेश्चन देन अ टैक्स क्वेश्चन, है ना? कैलकुलेट रॉड शेयर ऑफ टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग लॉस, इसका मिल गया आपको 6 मार्क। ठीक है, अब हाउ विल दिस लॉस बी एडजस्टेड, दैट इज द क्वेश्चन। अब if you look at tax year 24-25, employment income 26,000, dividends are 8,000, है ना? Rod has a trading loss of 9,667 in tax year 24-25 and trading loss of 29,333 in 25-26.
ये कहाँ से आया? 9667 यहां से आया, एंड 29,333 यहां पर आया। What benefits are possible? अब रॉड के लिए थिंक अबाउट इट दिस वे, रॉड एंटर्ड इनटू दिस पार्टनरशिप, ऑल्दो ये एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप था, दिस इज रॉड्स फर्स्ट ईयर इन द पार्टनरशिप, तो विल ही गेट ओपनिंग ईयर रिलीफ? Yes, sir. हाउ डज ओपनिंग ईयर रिलीफ वर्क, टेल मी? First 4 years you can carry it back for 3 years in the FIFO basis. ओपनिंग ईयर लॉस कैन बी कैरीड बैकवर्ड फॉर 3 years, एंड ओपनिंग ईयर में आता है फर्स्ट 4 years ऑफ ट्रेडिंग, राइट? सिर्फ Yes, फर्स्ट ईयर sir. ऑफ ट्रेडिंग नहीं आता है, फर्स्ट 4 years ऑफ ट्रेडिंग आता है, यू कैन कैरी इट बैकवर्ड फॉर 3 years ऑन अ फीफो बेसिस, करेक्ट? Yes, sir. तो यहाँ पे कैसे करेंगे? लॉस ऑफ टैक्स ईयर 24-25 विल बी कैरीड बैक एंड ऑफसेट अगेंस्ट इनकम ऑफ 21-22, है ना? सबसे पहले वील कैरी दिस बैकवर्ड, लॉस ऑफ टैक्स ईयर 24-25 to be carried backward and adjusted against profit of 21-22, है ना? टैक्स सेविंग कितना होगा? 9667 into 40%. 9667 into 40%, 3867, करेक्ट? इसका यू विल बेसिकली क्लेम अ रीपेमेंट ऑफ टैक्स फ्रॉम गवर्नमेंट, राइट? Yes, sir. अब ये जो 29,333 का लॉस है वो भी कैरी बैकवर्ड हो सकता है। कौन से ईयर के अगेंस्ट होगा? 22-23 के अगेंस्ट होगा। इंटू Yes, sir. 40% विल बी द अमाउंट ऑफ टैक्स सेविंग, राइट? Yes, sir. ओके, अब एक बात ऑब्जर्व करो, इन द ईयर 22-23 टोटल इनकम कितना है? 1,06,000 90,000. है हाँ. ना? Yes, सो sir. यू मस्ट हैव reduced PA by how much? 1,06,000 minus 1 into 50%. You must have reduced PA by 3,000, है ना? Yes, sir. अब when you carry back the loss and adjust 29,333, तो कितना हो जाएगा आपका? 76,667 हो जाएगा, राइट? Yes, sir. सो जो आपका टैक्स सेविंग है, ऑब्जर्व वन थिंग, ठीक है? सो 29,333 दिस इंटू 40% का तो टैक्स सेविंग होगा ही, 11,733 का, ठीक है? उसके साथ साथ और क्या टैक्स सेविंग होगा? सी, बिकॉज दिस adjusted loss reduces your total income below 1 lakh, so now PA will not be lost. Do you agree? Yes, sir. PA will not be lost, so एक आपको मिलेगा यहां पे additional tax saving which will be 3,000 into 40%, which is 1,200। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज सी, ये पूरा क्वेश्चन अदरवाइज नथिंग ग्रेट, बट दिस फैक्ट कि व्हेन यू कैरी बैकवर्ड द लॉस एंड एडजस्ट इट अगेंस्ट प्रॉफिट्स ऑफ 22-23, आपका आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ लॉस द टीटीपी गोज बिलो 1 लाख, है ना? इफ इट गोज बिलो 1 लाख, द रिडक्शन ऑफ पीए इज कैंसिल्ड, तो जो पहले 3,000 का पीए लॉस हो रहा था, दैट पीए लॉस वोंट हैपन नाउ, करेक्ट? तो मेंशनिंग दिस गेट्स यू दोस एक्स्ट्रा ब्राउनी पॉइंट्स इन द पेपर। ये अगर आप मेंशन करते हो, इफ यू टॉक अबाउट दिस, naturally हैज सम इट हैज अ बेटर इम्पैक्ट ऑन योर आंसर। इसके वजह से आपको वो जो ये जो मेरिट और इसका जो डिफरेंस है ना, वो यही है, ठीक है? Understood, sir. बाकी Okay.
बाकी कुछ ऐसा, there's not much of a difference there. But yes, these are the things, that make a complete change in your answer. उसके वजह से the way your answer is perceived will also change, and the final outcome will also change. ठीक है? Okay.